الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد صابر، خوش آمدید آپ کو میرے چینل میں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی مناسبت یہ ہے کہ کل 22 جمادی الثانی ہے۔ 22 جمادی الثانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ تھا، عبداللہ بن قحافہ ان کے والد صاحب کا نام تھا، اور عبداللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا۔ ابو بکر ان کی کنیت تھی، صدیق ان کا لقب تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی عظمت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب دوست تھے۔ اسی کے اوپر ایک واقعہ آتا ہے کہ جب ہجرت کا واقعہ ہوا، ہجرت کا وقت آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ہمیں کل جو ہے نا ہجرت کر کے جانا ہے مدینے میں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ چکے تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول، ابھی میں نے ایک غار ڈھونڈ کے رکھا ہے، ہم کچھ وقت کے لیے وہاں غار میں آرام کر لیتے ہیں، اس کے بعد جب ہمیں ڈھونڈنے کا یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم روانہ ہو جائیں گے۔ تو مکہ سے یہ سمجھ لیں کہ غار سور اس طرف ہے اور مدینہ اس طرف ہے، مکہ ادھر ہے اور مدینہ اس طرف ہے، تو یہاں سے مدینہ قریب ہے، لیکن غار سور اپوزٹ سائڈ پہ ہے بالکل۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاؤں کی ایڑیوں پر چل رہے تھے، پاؤں کے ایڑیوں پر چلتے چلتے غار سور تک پہنچے، کیونکہ وہاں عرب میں کھوجی بہت مشہور تھے۔ ہمارے علاقہ ہے، گاؤں ہے، وہاں پر بھی جو ہے نا یہ شروع کے زمانے، آج کل تو اس کا علم ختم ہو گیا، لیکن شروع کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کہیں چوری ہو جائے تو وہاں پر کھوجیوں کو بلایا جاتا تھا، اور وہ کھوجی اس طریقے سے اس کے پاؤں کے نشانات دیکھتے تھے، اور پھر اسی پاؤں کے نشانات پر چلتے چلتے جس بندے نے چوری کی ہو تو اس کے گھر تک پہنچ جاتے تھے کہ یہ چور اس گھر میں ہے۔ تو وہاں پر کھوجی بہت ان کے پاس علم ہوتا تھا، یہ بھی ایک بہت بڑا علم تھا۔ آج کل تو لیکن یہ علم ختم ہو گیا، کیونکہ پکے راستے وغیرہ بن گئے تو یہ علم ختم ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایڑیوں سے چل رہے تھے، غار سور تک پہنچے۔ اب پہاڑ غار سور بالکل سیدھا ہے، بالکل سیدھا۔ ہم لوگ گئے تھے الحمدللہ وہاں پر آج کل تو سیڑھیاں بن چکی ہیں، آج کل انسان جا سکتا ہے۔ تو غار سور میں جب وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت سیڑھیاں وغیرہ کچھ نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایڑیوں کے پاس ایڑیوں سے چل رہے تھے اور غار سور پر پہنچے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیاں زخمی ہو گئیں۔ جب ایڑیاں زخمی ہو گئی تو حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور ان کو اوپر وہاں لے گئے، اور غار سور میں اوپر چڑھتے گئے، سور موجود ہے وہاں پر پہنچے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ آپ باہر رک جائیں، میں اندر دیکھ کے آتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، اور غار کے جتنے بھی سوراخ تھے وہ پتھروں سے بند کر دیے، اور سوراخ بچ گئے، اپنا امامہ اتارا، اس سے وہ سوراخ بند کر دیے، اور جو ہے نا سوراخ بچے تھے اپنا کرتا مبارک اتارا، وہ پھاڑ کے سوراخ بند کر دیے۔ ایک سوراخ بچ گیا، وہاں پر پاؤں رکھ کے جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق وہاں پر بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی کو اندر بلایا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، ابو بکر تمہارا کرتا کہاں ہے، تمہارا امامہ کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر نے بتایا کہ جو ہے نا یہاں پر یہ سوراخ تھے، میں نے اس سے جو ہے نا یہ بند کر دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ یا اللہ تو ابو بکر سے راضی ہو جا، میں راضی ہوں، اور اس کو جنت میں میرا ساتھی بنانا۔ فوراً حضرت جبریل اترے اور اللہ کے نبی کو عرض کیا کہ آپ کو خوشخبری ہو، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر دی کہ حضرت ابو بکر آپ کے جنت میں ساتھی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر سے راضی ہو گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو بکر وہ جو سوراخ تھا وہاں پر جو ہے نا پاؤں رکھ کر، ایڑی رکھ کر اپنی وہاں پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی سو گئے، اللہ کے نبی کی آنکھ لگ گئی، اور سانپ کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ ڈسنا، لیکن اس وقت جو سانپ نے کاٹا تھا حضرت ابو بکر کو، وہ فطرت سے نہیں کاٹا تھا، وہ اس وجہ سے کاٹا تھا کہ وہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا چاہتا تھا۔ ڈستا رہا، 2 ڈنگ مارے، 3 ڈنگ مارے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کلیجہ دیکھیں، وہ انہوں نے پاؤں ہلایا تک نہیں، کہیں میرے حبیب کی آنکھ نہ کھل جائے، پاؤں پورا شل ہو چکا، آنکھوں سے آنسو نکلے، جیسے ہی آنسو نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
मालका या अबा बकर, तुझे क्या हुआ है अबू बकर। देखें, ये होती है हंगामी हालत, लेकिन हज़रत अबू बकर का अदब और एहतराम देखें। पाँव शल है, लेकिन उस वक़्त भी अदब और एहतराम से बात की। और क्या अर्ज़ किया, लुदिकतु फ़िदाअका अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हुए अल्लाह के रसूल, मुझे सांप ने डंगा है। हज़रत उमर जब ये वाक़या बयान करते तो रोते, बहुत ज़्यादा रोते, और फरमाते कि मैं हज़रत अबू बकर से अर्ज़ करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की सारी नेकियां ले लें। वो जो उघार वाले वाक़े दिन को जो सवाब उनको मिला है, सिर्फ वो मुझे दे दें, मेरे ज़िंदगी की सारी नेकियां ले लें। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इतनी मोहब्बत थी उनको, अपना सब कुछ लुटा दिया था अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब मेराज हुआ था, तो जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान किया, लोगों के दरमियान ये बात मशहूर हो गई कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज पर गए, तो कुफ़ार थे, जो मक्का के जो कुरैश थे, काफिर थे, उनको यकीन नहीं आया। जो मक्का के काफिर थे, उन्होंने कहा हज़रत अबू बकर से कि आपको क्या ये बात समझ में आती है कि कोई शख्स मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जाए, फिर वहाँ से जो है ना मस्जिद अक्सा से सातों आसमान का सफ़र करे, फिर उसके बाद वहाँ से वापस आ जाए सिर्फ एक रात में। हज़रत अबू बकर ने फिल बदी कहा, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। अगर कोई शख्स जाता है बैतुल मुक़द्दस, तो वहाँ पर कम से कम उसको 2 महीने लगने होने चाहिए, सिर्फ वहाँ पर छू के वापस आ जाए। 1 महीना जाने के लिए, 1 महीना आने के लिए, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। तो मक्का के जो कुरैश थे, काफिर थे, उन्होंने कहा ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है कि वो मेराज पर गए थे एक ही रात में, वहाँ से वापस भी आ चुके थे। तो हज़रत अबू बकर ने क्या फरमाया, ला इन क़ाला सदक़ा व उसद्दिक़ुहु, अगर ये बात अल्लाह के नबी ने कही है तो सच कही है और मैं उनकी तस्दीक करता हूँ। उलमा फरमाते हैं कि इसी बात की वजह से सुम्मिया सिद्दीक, वलिहाजा सुम्मिया सिद्दीक, इसी बात की वजह से हज़रत अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब मिला। तो कुरैश ने कहा, कुरैश के जो काफिर थे, अभी तो आप कह रहे थे कि ये बात मुझे समझ में नहीं आती, फिर अभी आप कह रहे हैं कि जो है ना अगर उन्होंने कहा है तो सच कहा है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे, कोई और बात कहे तो बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कहें, तो इससे भी अजीब अगर बात कहें तो मैं फिर भी उनकी तस्दीक करूँगा। और हज़रत अबू बकर ने सिद्दीक जो है ना, तस्दीक करने वाले, सिद्दीक के 2 मतलब हैं, एक है तस्दीक करने वाले कि उन्होंने मेराज के वाक़े की तस्दीक की थी, इस वजह से उनको सिद्दीक कहा गया। दूसरी बात ये कि सिद्दीक मतलब सच बोलने वाला। हज़रत अबू बकर ने कभी झूठ नहीं बोला। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर का वाक़या आता है ग़ज़वा तबूक के मौके पर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसके पास जितना माल है वो अपने हिसाब से लेकर आए ताकि हम जंग की तैयारी कर सकें। हज़रत उमर के पास उस वक़्त थोड़ा माल ज़्यादा था, हज़रत अबू बकर के पास थोड़ा सा कम था। हज़रत उमर कहने लगे कि आज तो मैं अबू बकर से जीत जाऊँगा, आज मैं अबू बकर से आगे निकलने का मौका है। हज़रत उमर के आधा माल घर में छोड़ा और आधा माल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर किया। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत उमर से तुमने घर में क्या छोड़ा, घर में कुछ छोड़ा भी है? हज़रत उमर ने कहा, जी हाँ, मैंने अपने माल में से आधा माल घर वालों के लिए छोड़ा और आधा आपकी खिदमत में हाजिर किया। उतने में हज़रत अबू बकर ने भी हाजिर किया जितना माल था। तो अल्लाह के नबी ने हज़रत अबू बकर से कहा कि आपने क्या छोड़ा घर में, कुछ घर में छोड़ के भी आए हैं? हज़रत अबू बकर ने कहा, मैं अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ कर आया हूँ, बाकी जितना था सब कुछ मैं लेकर आ गया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को, हज़रत उमर उस वक़्त समझ गए कि मैं अबू बकर से आगे नहीं निकल सकता। हज़रत अबू बकर का मकाम अपना है, मैं उनसे आगे कभी नहीं निकल सकता। हज़रत अबू बकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जब खलीफा बने तो मजदूरी करने जा रहे हैं, अपना जो काम था उनका मजदूरी करने जा रहे हैं। किसी ने देखा, हज़रत उमर को कहा, हज़रत अली जब जा रहे थे उन दोनों को कहा कि आपके अमीरुल मोमिनीन तो मजदूरी करने जा रहे हैं। हज़रत उमर हज़रत अबू बकर के सामने आ गए, कहा, अमीरुल मोमिनीन आप कहाँ जा रहे हैं? कहा, मैं तो मजदूरी करने जा रहा हूँ।
ये हुकूमत के चक्कर में मैं अपने बीवी बच्चों को नहीं छोड़ सकता, मैं तो अपना मजदूरी करके अपने घर वालों को खिलाऊंगा। हज़रत उमर ने कहा कि आप चलें हमारे साथ, आपके लिए बैतुल माल में से वजीफ़ा मुकर्रर कर देते हैं। जब सारे सहाबा ने मशवरा किया हज़रत अबू बकर के लिए वजीफ़ा मुकर्रर करना है, तो किसी सहाबी ने अर्ज़ किया, क्या आप कितना वजीफ़ा मुकर्रर करेंगे अपने घर के लिए? हज़रत अबू बकर ने कहा, मैं उतना ही वजीफ़ा मुकर्रर करूँगा जितना एक मज़दूर दिन में कमाता है, उतना मैं अपने लिए वजीफ़ा मुकर्रर करूँगा। और किसी ने कहा कि अगर आपका इससे गुजारा नहीं हो पाया तो? हज़रत अबू बकर के अल्फाज पे गौर करें तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि मज़दूर की जो मज़दूरी है मैं उसको बढ़ा दूँगा। ये नहीं फरमाया कि जो है मैं अपने लिए ज़्यादा कर लूँगा, फरमाया नहीं, जो मज़दूर की मज़दूरी है मैं उसमें इजाफ़ा कर दूँगा अगर मेरा गुजारा इससे नहीं हो पाया तो। ये भी एक हुक्मरान थे। आज लोग मिसालें देते हैं हज़रत अबू बकर की हुक्मरानी के, हज़रत उमर की हुक्मरानी के, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुक्मरानी के। हज़रत अबू बकर 11 हिजरी से लेकर 13 हिजरी तक अमीरुल मोमिनीन बनते रहे। 23 महीने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत रही और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात 22 जमादी-उस-सानी 63 साल की उम्र में हुई और उनकी कब्र मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर में है। अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं जब कब्र से उठूंगा तो मेरे दाएं जानिब अबू बकर होंगे, बाएं जानिब उमर होंगे, फिर हम जन्नतुल बकी वालों के पास जाएंगे। बहुत सारी अहादीस में आता है कि मैं अबू बकर उमर यहाँ गए, मैं अबू बकर उमर क़यामत के दिन एक साथ उठेंगे, मैं अबू बकर उमर जन्नत में जाएंगे। इतनी बड़ी हज़रत अबू बकर की फजीलत है। अशरा मुबश्शरा हैं जिनको अल्लाह के नबी ने दुनिया में रहते हुए जन्नत की खुशखबरी दी, लेकिन हज़रत अबू बकर में अल्लाह का इतना डर, अल्लाह का इतना खौफ होता था कि किसी दरख्त को देख लेते तो फरमाते कि ए दरख्त तू कितना पुरसुकून है, तू कितना अच्छा है, काश अबू बकर एक दरख्त होता जो काट दिया जाता और उससे हिसाब किताब ना होता। तो आज हम देखें, क्या हमारे अंदर ये जज्बात हैं, हमारे अंदर ये ईमानी जज्बात हैं? क्या हम किसी दरख्त को देखें कहें कि काश जो है ना मैं दरख्त होता, मैं काट दिया जाता, कि मुझसे हिसाब किताब ना होता? आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम।